साहिब जियो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो एक करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद ज्यों जानो त्यों राख हर प्राप्ति कीते गणों असंख अवगण मेरा असंख अवगण कदे फेरे नित प्रात साध भूलिए मोह मगन विकराल माया तो बरसाती भूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ ने होते मेरा विनवंत नानक दया तारो काट भवजन फिरिया बहुत फेर पै कृपन को आप केश कृपा कीजै हो दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बखस करीजै तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुर गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शरण आषाढ़ी जियो सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होय सेवत खसमती नूर यासो पुरसो जतिया
ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਸੁਚਾ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚ ਹੋਏ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇਹੇ, ਫਿਰ ਰਮੀਆ ਰਸਮਾਨਸੀ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਲੇਹੇ ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਜੀਐ, ਧਨ ਵਾਂਡੀ ਚੂਰੇ। ਜਿਉ ਦਲ ਥੋੜੈ ਮਸੂਲੀ, ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹੱਥ ਪਲਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ऐसे दीनदयाल पर उपकारी करना विधान कृपा की खान सतगुरु पातशाह महाराज जी की अपने अपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत के दाते सतगुरु साहिब कुमार बादशाह दरवेश अर्शा फरशा दे मालक नीले दे शाहे असवार देग तेग ते तहीन मरद अगबड़े धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹੇਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸਰਬੋਤਮ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਾਢ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। वो शब्द विचार जिसको कहते शब्दों का गाव हो हरि केरा, हरि का शब्द उसनों गाना, उसकी विचार करनी, उसकी विचारधारा जीवन काल अपना करके जीवन पद को सुखाला बनाना। ये गुरमत की विचारधारा सतगुरु जी के मत की सिक्ख्या है।
तकरीबन संसार का हर मनुष्य चाहता है कि मेरा मन शांत हो गए, मन टिका हो गए, मैं सुखी होगा। संसार के हर मनुष्य की ये चाहना, ये तलाश, ये इच्छा जिंदगी के अंत ने समय तक बनी रही है। हरेक मनुष्य आस रखता है कि सुख प्राप्त हो। इसे आस के विच मनुष्य तीर्थों से भी जाता है, धार्मिक कर्म भी करता है और समाजिक कार्य भी करता है कि लोगों की शोभा होवे, मन को सुकून मिले, सुख मिले, तन के मन की शांति हासिल हो। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज के उपदेश अंदर समझाया है कि जिन्ना चिर मन की सुचमताई, मन की शांति, मन की पवित्रता नहीं होती, उन्ना चिर बाहर मुखी कर्म करने के द्वारा भावें वो धार्मिक कर्म क्यों ना किए जान, उन्ना चिर हौ बनी रही है। ते हौ एक वो मैल है जिहड़ी मनुख की जन्मां जन्मांतरां की साची है। माल विखेप ते अवर्ण इन्हां मैलों का ग्रंथों में जिक्र है। मालवी अवर्ण की और विखेपी जिन्हों विखेप आख्या, इन्हां की मैल मनुख नूं जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव से, किसी न किसी मुकाम से अपने विच लपेट करके मैला करके रख दी, जिस करके अंतशकरण हिरदा मन शुद्ध नहीं होंदा ते मनुख बाहरी कर्म कांड करन ते बड़ा जोर बाल दिंदा है। ते बाहरी तौर पर तीर्थों के इशनान कर लो, इशनान कीतिया कुछ समय वास्ते मन को तसल्ली भी मिलती है कि मैं इशनान कर लिया। भावें कि मन का उतरा चढ़ा, मन की अशांति उस तरह बरकरार रही है ते रहे, पर कुछ न कुछ मन को बाहरी तौर पर कर्म करने की तसली जरूर होती। जितने भी कोई कर लवे, भावें मन ना ही लगे, सुरती खिड़ी रहे, फिर भी होता है कि असीं नितनेम कर लिया। सतगुरु पातशाह महाराज जी पावन बाणी के अंदर थावां थावां ते सुरत का टिकाव होना, मन की एकाग्रता होना, खास करके धर्म के मार्ग से तुरन वास्ते सावधानता की बड़ी भारी जरूरत है। वैसे तो दुनिया का कोई भी कार्य काम ऐसा नहीं कि जिहदे ध्यान की, सावधानता की, सुचेतताई की लोड़ ना हो। हरेक कार्य ही मनुख का ध्यान मंगता है, सावधानता मंगता है। वो गल वक्री है कि मनुख ध्यान उस पासे ना देवे। कई बार मनुख किसी साधन से जा रहे हो, आसे पासे वेखन लग पवे कि अगों किसी से जा ठोकदा है, उसका कारण यही होगा कि ध्यान पासे चलिया गया है। जिवें दुनिया से ध्यान उखड़ जाए तो बड़ा खतरा है सट पेट लगन का, दुर्घटना होने का। इसे प्रकार अध्यात्मिक मार्ग से पासी मन वास्ते ध्यान का एकाग्र होना, ध्यान का टिकाव होना, सुरत की एकाग्रता होनी बड़ी जरूरी है। सुरत खब्बे सज्जे चली जाए, सुरत उतरा चढ़ाव होवे, पर कई बारी जप तप करदियां, सिमरन साधना करदियां भी मनुख के मन अजिहे ख्याल पैदा होंदे ने कि मन में एक उफान उठ खड़ोंदा है, एक झक्खड़ जिहा ढुलन लग पैंदा है, ते जिहड़ा मन का ध्यान नूं पता लग जाता कि की होण दिया है मन में। जदों अंदरों उबाला उठदा है, वो जन्मां जन्मांतरां ते पाए हुए संस्कार जदों हिरजत करते हैं वो बाहर आते हैं, क्योंकि जो अंदर है उन्हें बाहर जिन्ना चिर ना आया उन्ना चिर मन की सफाई नहीं हो सकती। अज के शब्द अंदर साहिबां ने झूठ का जिक्र किया है। झूठ झूठ संसार समाज के अंदर बहुत भारी प्रफुल्लित है। जिथे झूठ होगी उत्थे झूठ होगा, जिथे झूठ है उत्थे झूठ होगी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने झूठ का जिक्र किया है।
ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚੌਕਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਕ ਟੱਪ ਗਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੀਕ ਵਾਈ ਸੀ ਪੋਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੌਕਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਝੂਠੇ, ਜਾਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਅਪਾਗੇ। ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਝਾ ਕਉਨ ਖਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਔ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਕਰਤੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਖਾਇਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਣਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੁਝੇ ਕੌਣ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਝੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੋਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਹੈ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਤਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਤੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਲ ਲਗਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਈਨੀ ਕਾਰਾ, ਗੋਬਰ ਝੂਠਾ, ਗੋਹਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਝੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਝੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ पातशाह महाराज जी पावन पवित्र कल्याणकारी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। मन झूठा है, मन झूठा है। मन झूठा कदों होता है जब मन की गलत संकल्प विकल्प विचार पैदा हो, गलत विचार करते हो तो मन झूठा है। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿ ਨੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, गलत विकल्पां विचारण करके मन झूठा है। ते मन उदों सच्चा होता है जो नाम जप सिमरन किया जाए, भगती की जाए। गलत विचार, गलत संकल्प विकल्प, गलत फुरने सारे के सारे डिलीट हो जाते, मुक जाते, खत्म हो जाते हैं।
जिस मनुख का मन झूठा है तो उसका तन कितों सच्चा हो सकता है। लख दावा करे कोई कि जी मैं ठाठा तीर्थ पर स्नान करने का धो लिया जी बस पवित्र हो गया। गुरु साहब कहते तन झूठ है, तन भी झूठा है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਾਲ ਲਿਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਣ ਸਾਫ਼, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। गुरमत ने पहला ही इशनान का जिक्र किया है। सो गुरु साहब कह रहे हैं मन झूठा है, मन झूठा है, गलत विचारा करके तन झूठ है। ते जो विचार अंदर गलत चलते होन ते जिस ढांचे में अंदर गंदगी होवे, बाहरों भावें रेशम का कपड़ा पाई फिरे वो भी झूठा ही है। साहब कहते तन भी झूठ है। अगे जिहवा जबान का जिक्र किया। तो जबान कितना झूठी होती जो झूठ बोलती है, गलत बोलती है, उदो जबान झूठी है। ये जबान की पवित्रताई सुचमताई कदों होती। साहब कहते नाम कह तो गोविंद का सूजी भई रसना। जबान उदो सुची भई हो गई जो वाहिगुरू का नाम कहा, नाम जपया, नाम जपन करके ही रसना सुची ते पवित्र होती है। तो साहब कहते नहीं तो कूड़ बोलन करके, झूठ बोलन करके जबान भी जी झूठी अपवित्र हो रही है। झूठी का अखरी अर्थ है अपवित्र, गंदी। हुणे आप जी ने सुनिया कि विद्वान लोग झूठ मानते हैं। जो वधिया होया भोजन पिछे बच जाए उन्होंने झूठा मनिया जाता है। अज भी झूठा मनिया जाता है कि ये अपवित्र हो गया है। गुरु पातशाह जी इतने उस भोजन का जिक्र नहीं कर रहे जिन्होंने विद्वान लोग के ग्रंथों में झूठा लिखा है। सब उस झूठ की जिक्र की है जी पता नहीं कितनी पुरानी है। और झूठ बोलन की बाती, झूठ बोलन का सुभाव जिसनों बाणी च गया है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कि मुंडे दी खसरत ना गईया अंदर विछड़ चोटा खाए। वो खसरत होंदी है बाती आदत जी झूठ बोलन की पै जाए, जो सुभाव संस्कार अनुसार मुठ तो बन जाए झूठ बोलन का। वो झूठ बोलन तो बिना रह नहीं सकता। गुरु की बाणी का भगत रसना तो फरमान है। बोलिए सच झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुरु दसे वाट, वाट का अर्थ है मार्ग रास्ता। जिहड़ा रास्ता गुरु दसदा मुरीदा जोलिए, मुरीद सेवक का फर्ज उस रास्ते से जोलिए मत तुरना, उस रास्ते से तुरना करे। ते सहब फरमा रहे हैं जेबा झूठी होए जबान भी झूठी है। 10 इंद्रियों का पानी च साहिबा ने वार बार जिक्र किया। 10 इंद्री कर राखे वास ताके आत्मा होए प्रकाश। एक थान से साहब कहते इंद्री की झूठत उतर नाही, ब्रह्म अगन के झूठे। कादे तुसी ब्राह्मण बने फिरदे हो। ब्राह्मण पुरे की अग तुहाडे अंदर च बलदी, उस अग दे हंकार च तुसी सड़े हो। इंद्रियों की झूठ तो दूर हो ही नहीं सकती। तो साहब कह रहे जेवा झूठी होए, झूठ बोलन करके, कूड़ बोलन करके, गलत फैसला सुनावन करके जबान भी झूठी हो रही है। मुख झूठा झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। मुख मुंह भी झूठा है। क्यों मुंह झूठा है? झूठ बोलना जो झूठ बोलना है, झूठ बोलन करके, झूठे बोलन करके मुंह भी झूठा है। ते अजिहा मुंह क्यों कर सुचा होए, किवें करके फिर सुचा हो सकता है। भाव अजिहे मुंह सुचा मुंह ही आख्या जाता। गिरद माइयां सियाने बजुर्ग वड्डी उम्र के कहते होंदे सन कि सुचे मुंह फलाने बंदे दे मथे लगना ते सारा ने बथिया लंघदा। ते सुचे मुंह का अर्थ की हुंदा सी, समझदे सन कि मुंह विच कुछ पाया ना होवे ते मुंह सुचा होगा। गुरु पातशाह कह रहे नहीं भाई, जो मुंह तो कूड़ झूठ बोलना मुंह झूठा ही होता है। सच्चा सच्चा कोई नहीं होता।
क्यों कर सोचा होवे, किस तरह करके, इस तरीके नाल भी वो मुंह झूठ बोलने वाला सोचा नहीं हो सकता। बिन अब शब्द न मातिया साचे ते सच होवे। हाँ, सोचा हो सकता है। एक शब्द धन गुरु नानक के सच्चे पातशाह महाराज जी का जो गुजरी राग की प्रगमता होती है, वो पहला शब्द है। उस शब्द के अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने वचन किया है। इसे वचन की व्याख्या झूठ लह मन मांजिया, झूठ लह जाती है ते मन मांजिया जाता है। मोख पयाना होए, मुक्ति का पयाना मार्ग रस्ता प्राप्त हो जाता है। कदों जो शब्द के द्वारा मन को मांजिया जाए। बिन अब का अर्थ है हिरदा मन। बिना गुरु के शब्द तो जरा हिरदा ना मांजिए, मांजिया नहीं जाता। जिवें रेता ते स्वाह दे नाल बर्तन मांज ले जाते हैं ते साफ हो जाते हैं, इसे तरह सहब कहते अहम बुद्ध मन पूर चिताई, साध धूर कर शुद्ध मजाई। अहम बुद्ध हंकार वाली बुद्धि दी मानू चिताई लगी, फंदा लगा है। साधु महापुरख सतगुरु के चरणों की धूड़ी द्वारा ही हिरदा मांजिया जाता, साफ होता है। इत्थे साहब कह रहे बिन अब शब्द ना मांजिए, बिना सतगुरु के शब्द की कमाई तो उपदेश तो जरा अब हिरदा में मांजिया नहीं जाता, शुद्ध नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता। साजे ते सज होए, सज्जे वाहिगुरु के नाम द्वारा ही ये हिरदा सज्जा हो सकता है, झूठे तो खड़ा छुड़ सकता है। सच्चे सतगुरु के कोलों सच होए, सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। मुंदे गुण ही सुख के, मुंदे का अर्थ होता है जवान स्त्री। वैसे बाणी के अंदर मुंदे शब्द या मुंद शब्द स्त्री वास्ते सहब वार वार वरत्या। मुंदे पिन पिन क्या सिगार, पति कोल ही नहीं ते शिंगार तेरा की आखदा, की लाभ तेरे शिंगार दा। मुंदे गुण ही सुख के है, हे नौजवान दीपा, हे भैने, हे स्त्री, जेकर तू गुण ही गुणा तो सकनी है। ताइए सहबा ज्ञान के गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे न लगे दुख। नाल दस दिता परलोक पारे सबना, सौहरे वंजना सब मुख नामन हार। सारिया का मुकलावा होना ते जे गुण होवन गंठड़िया, मिलेगा सोई। पल्ले गुण होए ते मालक आप ही मेल लवेगा। ते साहब कहते गुणा तो बिना सुख किथे। दुनियावी तौर ते देखो, जिस बीबी नूं रोटी पकाउण दी, प्रशादे पकाउण दी, दाल भाजी की जाच ना होवे ते की वो सुखी रह सकदे। झिड़कां खावे भी सस कोलों, पति कोलों नहीं। इसे तरह अध्यात्म मार्ग के अंदर जिहदे कोल सच नहीं, संतोख नहीं, धर्म नहीं, दया नहीं, विचार नहीं, धीरज नहीं, ये दैवी गुण हैं। ते दैवी गुणों तो बिना सुख किथे कोई भाल सकता। सहब कहते मुंदे ये बीबा गुण हीनी सुख कहे। गुणा तो हीनी का अर्थ हुंदा सखनी, खाली। गुणा तो खाली होने करके सुख कहे। सुख किवें प्राप्त हो सकता, नहीं सुख मिल सकता। जपजी साहब के अंदर साहब कहते वेद गुण कीते भगत नाम, इन्हां चिर गुण धारने कीते भगती हो ही नहीं सकती। सो साहब इत्थे कह रहे हैं गुणा तो सखनी जीव स्त्री नूं सुखां की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर रिया रस मानसी साध शब्द सुख दे। केड़ी बीबी नूं, केड़ी स्त्री नूं सुख प्राप्त हुंदा कि रलियां माणदी। रलियां का अर्थ हुंदा है खुशियां, आनंद। फिर का अर्थ है पति। ओ गुरमुख जीव स्त्री फिर रलियां रस मानसी। फिर पति परमात्मा के कोलों रलियां खुशियां। ये रस का अर्थ है स्वरूप का रस, ब्रह्मा रस, परमा रस, इन्हू परमानंद आख्या है। उस रस को गुरमुख जीव स्त्री मानसी मानना करती है। जदों साज शब्द सुख नेह, सच्चे शब्द के नाल नेह नर्थ का प्रेम पाउंदी है। सच्चे शब्द के नाल प्रेम पा के सच्चे शब्द की कमाई करके उसनूं सुख प्राप्त होता है। शब्द के विचों उसनूं सारियां बरकतां ते सुख की प्राप्ति हो जाती है। सारे सुख उसनूं शब्द द्वारा ही मिल जाते। नहीं तो साहिबां ने बाणी अंदर थावां थावां ते ये वचन उच्चारण कीते ने
सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेके नित नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। दुख आउण दा कारण ये है, दुख टले जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु बिद धावे। जदों मालक भुल जाए ते साहिब कहते जदों शब्द दे नाल प्रेम बन जाए, शब्द द्वारा ही गुरमुख जीव रूप इस्त्री नूं सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस राम दे के फरमान करते हैं, फिर परदेसी जेती है धन बांधी चूरे। फिर पति परदेसी दा थोड़ा पराए देश का वासी, ये तीए जिक्र हो जाए, पति पराए देश का वासी हो जाए, फिर धन जी इस्त्री है वाढ़ी का अर्थ है विछड़ी हुई। विसाख महीने द्वारा साहब कहते वैसाख धीन क्यों वाढ़ियां जिन्हां प्रेम विछो, जिहड़ियां विछड़ियां होईयां ने, जिन्हां दे हित च प्रेम की घाट है, वो किवें सुख प्राप्त कर सकदियां। धन वाढ़ी चूरे, वाढ़ी का अर्थ है विछड़ी हुई। चूरे कहते झूर की पछतावा करती वो जीव रूप इस्त्री जिहदा पति परमात्मा प्रदेश विच। इसे तरह पति परमात्मा का है सारे दे हिरदे विच, साहब कहते तो गुप्त रूप के हृदय वसदा तो हिरदे गुप्त वसै दिन राती, तेरा भाव ना बुझे गवारी, मूर्ख नहीं समझदे तेरा प्रेम है तो तू हिरदे विच, पर अज्ञानता के कारण सख्यात कार नहीं है। सख्यात कार ना होने करके वो जीव रूप स्त्री वास्ते परदेसी है, पराए देश का वासी है। जो सांझ नहीं पै रही इस वास्ते वो जीव रूप स्त्री साहब कहते विछड़ी हुई परमात्मा तो झूर की पछतावा करती है। जियो जल थोड़ा मशूली करण गुलाब करे, किवें झूर दी दुखी होंदी ज्यों जल थोड़े मछली। बाबा कबीर साहब जी का वचन, कबीर थोड़े जल मछली जीवन मेले जाल, यह टोकरे ना छूट सै फिर कर समुंद संभाल। ज्यों जल थोड़े मछली, मछली थोड़े पानी दे विच सहर किने कर्मदार तुंदा कीरने तोड़े, पलावदार तुंदा यतन करने उपराला करना। तो मछली का उपराला की तड़प ही सकती है ना, तड़पण का अलावा की यतन कर सकती। खंभ कोल है नहीं, कुट के किसी होर ढाब से नदी में चले जाए। थोड़े पानी में मछली जिवें कर्म पलाव करे कीरने पाउंदी है, तड़पना करती है। इसे तरह ही वो जीव रूप स्त्री परमात्मा तो विछड़ करके झूर दी दुख पाउंदी है। फिर भावै सुख पाई है जा आपे नदर करे, सुख कदों प्राप्त हुंदा जदों फिर भावे, फिर पति परमात्मा नूं भा जावे। जदों वाहिगुरू नूं भा जांदी ना, चंगी लग जाती ते परमात्मा नूं भाउंदा कि मैं इहनूं सुख देना है अपने स्वरूप नाल मेल के, फिर भावे सुख पाइए, फिर सुख पाइए प्राप्त हो जाता। सुख पा लेंदी है कदों या आपे नदर करे, जदों आप अपनी नदरे वेर कृपा दृष्टि कर देता है। सब कहते फिर जीव रूप स्त्री नूं सदैवी सुख की प्राप्ति हो जाती है। वो सुख जिहड़ा आत्मिक सुख है, ब्रह्मानंद का सुख है, परमानंद अवस्था का सुख है, वो सुख प्राप्त होता नहीं। तो डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, दुनिया के साधन पैदा करके मनुख ने बड़ा सुख प्राप्त करने का यत्न किया, पर साहब कहते नाम तो बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सो वो सदैवी सुख वाहिगुरू की नदर विच है, उसके मिलाप विच है, गुरमुख जीव रूप स्त्री को प्राप्त हो जाता है। फिर वो कभी विछड़ते नहीं। सखी वासे आया फिर छोड़ न जाई, यह रीत भली भगवंता है। ये अकाल पुरख के घर की मर्यादा साहब कहते जिहदे वासे च आ जाए ना, जिसनों अपनी पत्नी बना दे फिर उन्होंने छड्ड के किते जाता नहीं है। अकाल मूर्त वर पाया अविनाशी, ना कदे मरै ना जाया, जाया अर्थ है जन्म लैंदा, वो ना कभी मरदा ते ना कभी जन्म लैंदा है। उसका साया सदैवी सीस के उपर कायम रहिंदा है। ये पावन उपदेश साहिबां ने बख्शिश किया है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इस उपदेश का भाव ये रखा है कि भाई गुणा तो बिना, दैवी गुणा तो बिना वाहिगुरू के घर के नाल सांझ नहीं बन सकती। परमात्मा के दर घर तो सुख की आस ना रखियो जेकर तुहाडे पल्ले गुण नहीं हैं। परमात्मा का रस ते रलियां
ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਤਰੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਨ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਵਰੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। No.